ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਿਧਾਵਾ ਨਗਰ ਦੇ ਡਾਲਫਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਲੀਸ ਪੱਪੀ ਸੀ, ਸਨ ਆਫ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 17 ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੀਅਰ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਲਟਾਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਤ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੀ ਮਦਰ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸੋਨੂ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਏਲੀਅਸ ਸੁਦਾਮਾ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ 19 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਵਾ ਨਗਰ ਡਾਲਫਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ FSL ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਰਖਵਾਤੀ ਹੈ ਜੀ FSL ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਰ, ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੋਸਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਲੱਗ ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਲਟਾਣਾ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ? ਸਰ, ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਲਟਾਣਾ ਦੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਬੋਡੀ। ਤੇ ਸਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਲਪ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਗੱਲ हुई सी जी? सर, जो लड़का अभी इन्होंने पकड़ा है उसी लड़के ने धमकी दी थी। क्या नाम है उसका जो पकड़ा गया है? उसका सोनू और उसको सुदामा भी बोलते हैं। उसने क्या धमकी दी थी? कि हम इसके हाथ पैर तोड़ के इसे मार देंगे। क्यों, क्या रीजन? इनकी आपस में कोई बात थी, लड़ाई हुई थी। अच्छा, हाँ जी। तो उस वक्त जो लड़का मारा गया है, जिसकी डेड बॉडी बरामद हुई है, वो आपका भाई है? मेरा सगा भाई है वो। वो उस वक्त कहाँ था? वो उस वक्त उसी के साथ रहता था, उस वक्त भी। अच्छा, हाँ जी, साथ में ही रहते थे, लेकिन वो कोई बात हुई थी तो धमकी देके गया था घर पे। वैसे ये दोस्त थे आप? वैसे ही आपस में दोस्त थे सारे जने, 4-5 जने इकट्ठे रहते थे। जो भी उसके पिछला डाटा है उसमें ये सारी चीजों में शामिल है। ठीक है जी, ये अकेला नहीं है। जो भी उन्होंने कांड किए हैं, चाहे उसने चोरी करी, कुछ भी किया, ये चारों इकट्ठे हैं। वो जो गाड़ी है वो लेके घूमते रहते हैं। क्या कोई केस चल रहा था आपके भाई? हाँ जी, इस पे चल रहा था। ये उसके ऊपर भी था जिसने धमकी दी थी? उसकी क्योंकि पकड़ा सर यही जाता था, लेकिन जो पब्लिक है उन्होंने इनको 4 बंदों को इकट्ठे देखा है जहाँ जहाँ चोरियां हुई हैं, जहाँ ये पकड़ा गया है। धमकी क्यों दी थी उसने? मतलब कुछ है आइडिया हल्का इनकी आपस में कोई बात थी, चोरी के पीछे कोई बात हो गई थी, तो तब देके गया था घर पे तो धमकी। उसने आपको फोन करके धमकी दी नहीं, थी? वो घर पे आके मम्मी को बोल के गया था अच्छा, कि हम इसके हाथ पैर तोड़ देंगे मम्मी को। आपने उस वक्त कोई कंप्लेंट नहीं दायर की? नहीं, उस वक्त नहीं की। हमने कहा ये साथ में, उसके बाद भी साथ ही रहने लग गए थे। हाँ। फिर उसके बाद ये चला गया था जेल। फिर जैसे ही वहां से निकला है, 2 महीने बाद ये हमें इसकी डेड बॉडी मिली है, वो भी उसी लड़के के घर से। 2 महीने पहले आपको धमकी आई? हाँ। और 2 महीने बाद आज आपको आपके भाई की डेड बॉडी मिल गई। उसको मौका ही नहीं मिला घर आने का। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੌਂਕੀ ਵੱਲੋਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਬਲਟਾਣਾ ਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ? अभी तो सर ये बोल रहे हैं कि हम केस ट्रांसफर कर रहे हैं हरियाणा पुलिस में। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो अभी इन्होंने हमें कुछ कहा नहीं है कि मतलब ये पता कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी पोस्टमार्टम की, तब तक हम इनको अंदर बंद रखेंगे अपने पास। कोई इसमें कोई अरेस्ट किया गया, किसी को पकड़ के लाए हैं? अभी सिर्फ ये पकड़ के लाए हैं, इन्होंने अरेस्ट कुछ नहीं किया। अभी इनके पास रहेंगे जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती। इन्होंने मेरे को यही बोला है। अभी कौन है वो व्यक्ति जिनको ये पकड़ के लाए? वो उसके दोस्त हैं जिनके साथ वो रात भर था। क्या नाम है दोस्त? सोनू और उसको सुदामा भी बोलते हैं, और दूसरा अक्षय। 2 लड़के हैं। तो उसी की गाड़ी में उन्होंने इसको इधर उधर, घर पे एक्सपायर हुआ था, उसके बाद इन्होंने उसको पार्क में फेंका जाके। कहाँ पे है जो आप घर बोल रहे हो, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 19 सेक्टर में है, शिव मंदिर के पास, फिरोजपुर।
हाँ जी। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ? बिल्कुल आया जी। उसने अपनी जो गलती करी थी उसके साथ ही 4 लड़के रहते थे, जिसमें से यही पकड़ा जाता था क्योंकि नशा करता था थोड़ा बहुत, तो ये तीनों भाग जाते थे तो वही पकड़ा जाता था। तो उसने अपनी 2 महीने की सजा काटी। जैसे ही वो कल निकला वैसे ही जीरकपुर से ये उसको गाड़ी में लेके अपने घर आ गए। क्या जेल से निकलने के बाद आपके ब्रदर घर आए थे पहले या सीधा उनके पास? सीधा उनके साथ जीरकपुर से गाड़ी में चला गया था वो, उस टैक्सी में जिसमें वो उसको लेके घूम रहे थे। ठीक है। उसके बाद हमें जो फोन आया तो ये फोन आया था कि उसके घर पे एक्सपायर हो गया है। हमें पहले फोन यही आया था, तो दोबारा जब हमें पता चला तो इसकी लाश हमें वहाँ पे मिली डॉल्फिन पार्क में। किसने बताया था? जो आपकी मदर है उन्होंने हाँ जी। आरोप लगाया है कि उस तरफ से ही फोन आया था कि तुम्हारा बेटा जो है इनके जो डॉल्फिन ग्रुप का पार्क- लड़का है उसका फोन आया था कि उसके घर पे ये एक्सपायर हो गया है। हाँ जी। तो हमें वही लड़का जो अभी यहाँ पे पकड़ा हाँ हुआ जी, है? जो पकड़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर जब हम गए तो तब तक ये उसको वहाँ डॉल्फिन पार्क में फेंक चुके थे गाड़ी से निकाल कर। आपको क्या लग रहा है? देखिए आप पेरेंट हैं, बहन है आप उनकी जिनकी मृत्यु हुई, आपको क्या लग रहा है कि क्या हुआ हो सकता है? मुझे तो ये लगता है सर आपस में इनकी कोई बात हुई है वहां से निकलने के बाद, और तीनों की इनकी आपस में कोई बहस हुई है जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा कदम उठाया है। और अगर इसको कुछ हुआ भी था तो इन्होंने हमें फोन क्यों नहीं किया? ये हमें जानते हैं, हमारा घर जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। नहीं, आप बोल रहे हो ना कि आपको कॉल आई थी, उन्होंने बताया इसलिए था। तो- हाँ बताया था उसने कि मैं वहां से निकल गया हूँ। हाँ जी। एक्चुअली जो इनका तीसरा फ्रेंड था ना, उसने बताया हमें कॉल करके। अच्छा, वो व्यक्ति नहीं पकड़ा गया अभी? नहीं वो नहीं, वो अभी बद्दी गया हुआ, कहीं हिमाचल बद्दी गया हुआ है। उसका कोई कसूर लग रहा है आपको? मुझे उसका तो कोई कसूर नहीं लग रहा है वैसे, क्योंकि उसने हमें इन्फॉर्मेशन दी, बताया उसने। अगर वो नहीं बताता हमें कुछ नहीं पता चलता। क्योंकि उसने इसको ले जाते हुए देखा था गाड़ी में, तो उसने हमें बताया। इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया, ये सिर्फ उसको मार के उसको सीधा फेंकना चाहते थे ताकि, और इन्होंने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि ये मतलब एक्सपायर हो गया, हमारे घर पे है या नहीं है। अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि ये वारदात 19 सेक्टर पंचकुला की है, तो आपने पंचकुला में पुलिस स्टेशन में 19 की चौकी है जो भी रिलेट करती है, वहाँ पे कोई कंप्लेंट दायर की? सर सबसे पहले हम 19 में गए फेस 1 की चौकी में, तो उन्होंने बोला पंजाब का केस है, आप पंजाब में जाओ। फिर उसके बाद मैं पंजाब आई थाने में, तो ये कहते जी वो 19 के एरिया में हुआ है तो आप 19 में जाओ। फिर सेकंड टाइम मैं 19 में गई, तो मैंने वहाँ पे बात करी, वो कहते आप रहते पंजाब में हो, जहाँ अगर उसकी वारदात पंजाब में होती तो हम पंजाब में आते, तो आप रहते हो जिस वारदात हुई है तो ये हरियाणा वहाँ पे हुई है पंजाब में जहाँ पे मिला है आपको बंदा, तो हम नहीं आएंगे, वो हरियाणा की पुलिस करेगी। तो इनका बहुत देर बाद जब हम वहाँ पे खड़े रहे बोलते रहे, तो वहाँ से फिर एक सर है वो आए हमारे साथ देखने की बात सच है कि नहीं है, तो उन्होंने देखा, फिर इन्होंने आपस में कंप्लेंट करी, लेकिन उन्होंने हमारी पहले कंप्लेंट नहीं लिखी। पंजाब वाले लेके आए हैं, हाँ लेके पंजाब वाले आए। हरियाणा वालों ने अभी तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। आपकी क्या डिमांड है? क्योंकि देखो जहां तक सुनने में आ रहा है कि ये जो वारदात हुई है ये हरियाणा में हुई है, तो मेरा आपको कहने का मतलब ये था अगर हम थाने में गए हैं हरियाणा में तो पुलिस वालों को हमारे साथ आना चाहिए था, चाहे वो कंप्लेंट लिखते नहीं लिखते। वो हमें ये चीज कह रहे पंजाब में हुआ है पंजाब में जाओ, हरियाणा में हो हरियाणा में जाओ, तो ये बात गलत है। हमें तो उस टाइम बड़ी दिक्कत थी ना, उनको देखना चाहिए था। फिर उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ से फिर वहां गए, इतना परेशान हुए। उसके बाद ये सारा इन्होंने जब मीडिया वगैरह आ गई, हम वहाँ पे गए, तब जाके सारा कुछ क्लियर हुआ है। तो अभी क्या आप क्या मांग करते हैं प्रशासन? अभी तो हम सर यही कहते हैं कि हमारा भाई तो चला गया, इसने जाना था, लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं। उसके साथ हुआ क्या, अगर हुआ भी जिसके सामने, तो उसने हमें क्यों नहीं बताया, उसको मार के फेंका क्यों गया। इस ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੋਈ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।